ist die Macht, allmächtig ist Gott, sein Thron ist weise und seine Huld ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu. Groß ist der Herr, ja groß ist der Herr, sein Name ist heilig und alle Welt ist seiner Ehre voll, ist seiner Ehre voll, ist seiner Ehre voll. Betet ihn an, Anbetung dem Herrn, mit hoher Ehrfurcht wird auch von uns sein Name stets genannt, sein Name stets genannt, sein Name stets genannt. Singet dem Herrn, Lob singet dem Herrn, in frohen Chören, denn er vernimmt auch unseren Lobgesang, auch unseren Lobgesang, auch unseren Lobgesang. Liebe Geschwister im Herrn, in dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus möchten wir alle weltweit aus der Schweiz हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका unendlich dankbar sein, स्वागत करते हैं। Gnade vor Gott gefunden haben. हम बड़े Dankbar für das Vorrecht, dass der gute कि Hirte हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं in schwierigen Zeiten und कि वो Notlagen auf कि seine हमारे लिए इतना मुश्किल का समय है sie niemals im Stiche lässt. Auch wenn Bruder Frank nicht mehr von Stadt zu Stadt reisen kann, hat der treue Herr trotzdem dafür हम लोग आपस में über Internet मिल भी नहीं सकते और कहीं आ जा भी नहीं सकते, und Sprachen treue Brüder sind, die das और सारी जगहों पर Evangelium weitertragen. Gott hat sein Volk और हम überall auf der Erde. इस अनंत सुसमाचार को सुन सकते हैं। Einzelnen aus dem Reichtum seiner Gnade segnen und unsere Herzenswünsche आज हम में से बहुत कम हैं जो कि मिल पाते हैं, als Einleitung zur पर प्रभु हमारी इच्छाओं को, हमारी आशाओं को पूरा करे। aus Galater 6 मैं lesen. और प्रभु के वचन में से गलातियों 6 अध्याय को पढ़ना चाहूंगा। In Galater गलातियों 6 अध्याय को पढ़ना चाहूंगा। und Vers 14 गलातियों 6 mir aber और 14 से 16 आयत तक। kommen गलातियों 6 14 से 16 आयत तक। als Lohn des Kreuzes unseres Herrn Christus Jesus, durch das für mich die Welt gekreuzigt ist und ich für die Welt. Denn weder auf die Beschneidung noch गलातियों 6 14 से 16 तक। sein kommt es an. पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, Neue केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। und Erbarmen, nämlich über das Israel Gottes. Es heißt hier और in Galater
यहाँ लिखा है Vers 14 geschrieben, गलतियों 6 में möchten wir uns nur des 14वीं आयत में लिखा है, unseres Herrn Jesus Christus rühmen. Wir sind केवल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, heiligen Sünden eine neue Schöpfung aus Gnaden geworden ist. क्योंकि हम Wir sind dankbar für die Botschaft, हमारे अंदर हम उसके द्वारा एक नई सृष्टि बन गए हैं, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने हम इस नियम पर चलेंगे, उन पर परमेश्वर के इज़राइल पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे, kaufen, damit wir bei seinem baldigen Kommen genügend Öl in unseren Lampen haben. Wir wollen क्योंकि beten. जिससे कि हम प्रभु के आने पर Vater, हम प्रार्थना करते हैं। als Blut हे हमारे स्वर्गीय पिता, schauen wir weltweit auf zu और हम तेरे उस खून खरीदे हुए संतान के समान हैं। हम तेरे से प्रार्थना करते हैं des Wortes in besonderer क्योंकि Weise तू segnest. हमें अपने वचन से Du siehst आगे बढ़ा। unsere Not. और प्रभु, Das gibt हम देखते हैं Gelegenheit. हमारी सारी आवश्यकताओं को तू देखता है, Die göttliche Macht और इससे तेरे हमको ये zu beweisen. आशीष मिलती है, Gnade, dass wir dir in allen Dingen और हमें आशीष दे, अनुग्रह दे deinen Wegen bleiben. कि हम हर बातों में तुझ पर विश्वास कर चुके हैं और हम तेरे अंदर ही Die vollkommene बने रहें। Befreiung ist, damit unsere Herzen और हम प्रभु mit Lob और हम सब देख पाएं und Anbetung कि वो सारी बातें, उद्धार के काम को हमारे हृदय उस कार्य को देखकर आनंदित हो जाएं, और तेरा पवित्र आत्मा और वो तेरी शांति और तेरी दया हम पर होती रहे। Amen. और प्रभु के आशीषित नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। Auch ich möchte alle sehr herzlich grüßen. Wir sind ja im Herrn और verbunden. मैं भाई फ्रैंक भी अब आपको इस International मंच से, जहां पर आप सब एकत्रित हैं, सारे संसार में और प्रेम में एकत्रित हुए हैं, was Gott uns इसलिए क्योंकि हम ये जानते हैं hat. Und wir haben क्योंकि es परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। gehört. और अभी इस वचन में हमने सुना, So ist जो प्रभु यीशु में कोई होता है und wir danken तो वो एक नया प्राणी बन जाता है, नई सृष्टि बन जाता है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं für die Botschaft उस काम के लिए जो उसने हमारे उद्धार के काम को कार्यान्वित कर दिया, कंप्लीट कर दिया, geschenkt. और अपने अनुग्रह के द्वारा जो हमको मिला, Grüße ab और उसने हमको जो दिया अपना अनुग्रह, उसके द्वारा vielen Brüdern, हम आपको सबको बहुत सारे भाई बहनों की ओर से ग्रीटिंग्स देते हैं, और बहुत देशों से, aus और Budapest und von और भाई Budapest, बुकारेस्ट से, Brüssel, और ब्रदर टाटी ब्रसल से, alle geliebten Brüder, और इस जगह से भी हम आपको andere Sprachen ग्रीट करते हैं। übersetzen. और जो भी भाई इस समय दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, प्रभु आप सबको Leite euch, आपके साथ हो, schenke euch die और प्रभु आपकी अगुवाई करे, और आपको Herbert Laume और सही शब्दों का चयन दे, सही शब्दों का इस्तेमाल दे। zugeschaltet sind. और सारे भाई लोग Wir grüßen ja alle Welt जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, in Ost und West, in हम सब लोगों को, और हम सबको पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से जुड़ रहे हैं, हम सबके लिए कौन सोच सकता था, möglich wäre, 10-20 साल पहले कौन सोच सकता था कि इस प्रकार से ये पॉसिबल हो पाएगा। Welt zu erreichen. और Und wir हम denken da हम शायद सारे संसार में इस प्रकार से जा पाएंगे, ये कौन सोच सकता था। das और इस आत्मिक वचन के ऊपर हम इस प्रकार से
इस सुसमाचार को देख पाएंगे और परमेश्वर के राज का जो सुसमाचार है, जो बाइबल कहती है कि सारे संसार के कोने कोने में एक गवाही के तौर पर प्रचार किया जाएगा और उसके बाद अंत आ जाएगा। ये वचन में लिखा है, हमने इस बात को देखा, हम इस बात के बहुत नजदीक आ गए हैं। आप सब जानते हैं, जब मैंने आपसे कहा था पिछले महीनों के आखिरी दिनों में कहा था, पिछले साल के आखिरी दिनों में, और ये मुझे यकीन प्रभु की ओर से हो गया था कि प्रभु, मैंने जो कुछ भी तूने मुझे आज्ञा दी थी, मैंने उसको पूरा किया है, कोशिश करके पूरा किया है, और जो आखिरी मैसेज जो प्रचार किया जाएगा किया गया। और जैसे भाई ब्रैनम ने भी कहा था, जब उनको कहा गया था कि 11 जून को 1933 को कि जो संदेश है जो उनको दिया गया था, वो प्रभु के दूसरे आने के लिए, प्रभु के वापस आने के लिए मार्ग तैयार करेगा, वो संदेश। उसके बाद प्रभु ने उनको बुला लिया और 10 दिसंबर 1965 को, और जो कुछ भी उनको प्रभु से मिला, उस समय से हमारे पास ये वचन है, ये प्रकाशित वचन हमारे पास है। और जिस प्रकार भाई बाउंगाउट ने कहा, ये वो संदेश है जो वापस बाइबल की तरफ हमें ले जाता है, वचन की तरफ हमें ले जाता है, परमेश्वर की तरफ ले जाता है और उस प्रारंभ की तरफ ले जाता है। और इससे परमेश्वर ने हमको वो अनुग्रह, वो फजल दिया। हम बहुत सारी कलीसियाओं में पाए जाते थे, बहुत धर्मों में पाए जाते थे, संप्रदायों में पाए जाते थे, और प्रभु ने हमें वहां से वापस बुलाया, बाहर बुलाया, और उसने कहा कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ और अपने आप को अलग कर लो, और जो अपवित्र और नापाक चीज है उसको मत छुओ। और समय को ध्यान में रखते हुए, जो जिस समय में हम रह रहे हैं, जिस वक्त में रह रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। और मेरे अपनी सारी जिंदगी के अंदर मैंने तो अपने सारे जीवन में सिर्फ वचन का प्रचार ही करना था। हर शनिवार, हर दिन, हर संडे, और बहुत सालों तक, और संडे को 2 बारी, सुबह भी और शाम को भी। और अब हम देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। हम देखते हैं वातावरण चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है, दुनिया की में गर्मी बढ़ती जा रही है, और वायरस इन्फेक्शन बढ़ रहा है, और ये सारी चीजें आ गई, मुसीबतें आ गई, और हजारों लोग जो हैं, सैकड़ों लोग जो हैं, वो यहाँ नहीं आए, पर प्रभु फिर भी है। इस सब समय में भी हम इस चीज को जान पा रहे हैं कि जो अंत का समय वो है हमारे सामने। और प्रभु ने कहा, ये तो मुसीबतों का प्रारंभ है, ये तो उन मुसीबतों की शुरुआत है, प्रभु ने कहा। और हम जो जानते हैं, हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु वापस आएगा, और प्रभु आकर के हमको हमारे घर लेकर जाएंगे। और आज हम उन सारे वर्षों की तरफ, सारे समय को, सारे सालों को देखते हैं वापस मुड़ के कि 1949 से क्या हुआ। मैं उस बात से अवगत हूं, मैं उस बात से मेरी पहचान है कि भाई ब्रैनम के द्वारा
परमेश्वर यानी खुदावंद इस दुनिया में क्या कर रहा था। उसके बाद वो साल आए, वो वक्त आया 1955 और 1958 और 60 और 62 और उसके बाद और साल आए। हम प्रभु के इतने आभारी हैं, इतने थैंकफुल हैं कि हम अपने दिलों से उसके आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि हमने उस अनुग्रह, उस फजल को पाया कि हम उस चीज को बिलीव कर पाए, सोच पाए, ईमान ला पाए। एक भी बार हम एक सवाल नहीं उठा पाते। अब कोई डाउट या कोई संदेह या कोई डाउट या शक और शुबा हमारे जीवनों में नहीं है। हमारे लिए तो ये तो एक सामर्थ्य थी जिसकी हमने गवाही दी, हमने देखा अपने जीवनों में, हमने व्यक्तिगत रूप से देखा, इस चीज को देखा, इसको चश्मदीद देखा कि उन मीटिंगों में कि हमने सब कुछ देखा और उन चीजों का अनुभव किया, क्योंकि वो सारी चीजें उस प्रकार से ही हुई जिस प्रकार से हमारे प्रभु के समय में होती थी। कि वो कह सकता था अपने लोगों से कि वो कौन थे, वो कहाँ से, क्या बीमारी उनको है, और सारे डिटेल, सारी बातें उनको भाई ब्रैनम के द्वारा भी प्रभु बता देता था। और बार बार हम देखते हैं और वहां पर जो चंगाई की जो लाइनें खड़ी होती थी उनमें भी। और मैं प्रभु का अनंत काल तक के लिए आभारी हूं और शुक्रगुजार हूं कि मैं उस मिनिस्ट्री से जुड़ सका, इस बंदे की इस मिनिस्ट्री से जुड़ सका, इस भाई की मिनिस्ट्री से, सेवकाई से जुड़ सका। और उसके साथ उसी मेज पे मैंने खाना खाया और मैंने उसी गाड़ी में उसके साथ सफर किया और उन्हीं मंडलियों में उनके साथ रहा, सभाओं में रहा, क्योंकि ये वो व्यक्ति था प्रभु का जिसने मुझे बताया था। 2 दिसंबर 1962 को उन्होंने बताया। उसने कहा, उन्होंने एक एक शब्द, एक एक अल्फाज कहा कि प्रभु ने 2 अप्रैल को जो 1962 में प्रभु ने मुझसे कहा, वही वाली बात भाई ब्रैनम ने मुझे बात शब्द ब शब्द बता दी कि हम सोच रहे थे कि वहां पर एक अकाल आएगा और खाने पीने की चीजों का, संसारिक चीजों का अकाल आएगा, पर प्रभु की तो मर्जी ये थी कि अकाल वो आएगा कि उसके जो अल्फाज हैं, प्रभु का जो संदेश है, प्रभु का जो मैसेज है, उसका अकाल आएगा, उसके सुनने का अकाल आएगा। और वो सारा का सारा भोजन जो था उन टेप्स में शामिल किया गया, इकट्ठा किया गया। और प्रभु ने उस सब की रखवाली करी, उस सब को उसने संभाल के रखा। और मेरे साथ 4 लोग थे 4 देशों से जो जेफरसनविल जा रहे थे, जो कि मेरे साथ आंखों के देखे और कानों के सुने हुए गवाह थे उस समय के। जब भाई ब्रैनम ने मुझसे कहा, ये बातें कही, उन्होंने कहा, मैं कोई एक भी कहानी, एक भी अल्फाज बना के नहीं कह रहा, मैं तो उस अलौकिक, उस अनहोने, उस रूहानी एक्सपीरियंस, अनुभव के बारे में कह रहा हूं। जैसे कि प्रभु ने कहा, पुराने सालों के बारे में 1958 से लेकर हमारे पास रेगुलर मीटिंग होती थी, अनुवाद होते थे, भाई ब्रैनम के सरमन्स के ट्रांसलेशन होते थे। और एक समय आया जबकि ये मैसेज, संदेश, ये सारे संसार में ले जाने का, बांटने का समय आया।
Gnade, और आज भी Gnade. ये इसी प्रभु ने Als ich zurück हमको ऐसा अनुग्रह दिया। im April जब 66 जब मैं अप्रैल में 1966 में जब वापस आया, जब भाई ब्रैनम के फ्यूनरल के बाद वापस आया, मुझे ये पता था अब मुझे क्या करना है, और मैंने वो किया। और मैंने उन सभाओं का इंतजाम किया, प्रयोजन किया कि ये संदेश अब लक्समबर्ग रेडियो के द्वारा जितने जर्मन बोले जाने वाले, जर्मन भाषा बोले जाने सुनने जाने वाले देश प्रदेश थे, वहां पर ये बोला जाएगा। और प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया कि ये जो सभाएं थी, ये प्रोग्राम, ये जो थी, ये मीटिंग्स रेडियो लक्समबर्ग के द्वारा हर संडे को प्रचारित करी जाती थी। ये मीटिंग सभाएं, ये वचन, और जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इन सभी जगहों पर जब मैं इनके बारे में सोचता हूं कि प्रभु किस प्रकार से इनका प्रयोजन कर रहा था और किस प्रकार से, मुझे क्या पता था विश्वासी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें, हम प्रभु का कितना धन्यवाद कर सकते हैं। और उसके बाद में ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप भी उसमें जुड़ गया, और हम और सारी भाषाओं में हमने 174 देशों के अंदर प्रभु के प्रचार को बांट दिया है। 174 देशों के अंदर ये प्रभु का जो पाक तरीन जो संदेश है, कलाम है, 174 देशों के अंदर 174 कंट्रीज में हमने बांट दिया, और जिससे कि लोग इसको सुन सकें, विश्वास कर सकें और ग्रहण कर सकें। आज तो मिलियंस में, लाखों में लोग जो हैं, प्रभु ने इस समय के लिए जिनको नियुक्त किया, चुना है, उनके पास ये संदेश, ये वचन पहुंच चुका है। मैं इसके बारे में सोच रहा था, सिर्फ हमारी भाषा में नहीं, प्रभु ने कितनी सारी भाषाओं के लिए दरवाजे खोल दिए, मार्ग खोल दिए, रास्ते तैयार कर दिए। इंग्लिश लैंग्वेज, सिर्फ अंग्रेजी एक ऐसी बात है, और बहुत सारी भाषाएं, और इस प्रभु के संदेश का आगमन और प्रचार किया गया। हमारे पास अब कोई बहाना नहीं रहेगा, कोई बहाना नहीं रहेगा। न्याय के दिन मैं आपके सामने कुछ संदेश लेकर आया हूं, जो कि प्रभु की वापसी के बारे में बताते हैं, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इससे पहले कि मैं वो करूं, कि प्रभु, हमारा बचाने वाला प्रभु, जैसा कि सुसमाचार में बताया गया, उसने अपने चेलों से कहा कि यरूशलेम के साथ क्या होने वाला है, और उस प्रभु के आने के पहले क्या होगा, और इस संसार के अंत के आने से पहले क्या होगा। हमारे प्रभु ने कहा मत्ती 24 में, मरकुस 13 में और लूका 21 में, और मुझे ये बातें छू जाती हैं। जब हमारा प्रभु माउंट ओलिव में गया, जैतून के पर्वत पर गया और वहां बैठा था, आप पढ़ सकते हैं, और मंदिर के सामने वो बैठा था, हैकल के सामने बैठा था, और एक तरफ यरूशलेम दिख रहा था, और जैतून के पहाड़ पर
Parkplatz, और उसने कहा, Busse, और उसने von dem Platz aus konnten जहां पर अब सिर्फ जहां वह बसें खड़ी होती हैं, पार्किंग हो गई, direkt bis hin zum वहां से आप गत्समनी के बाग को देख सकते हैं hat mit और वहां से आप उस मंदिर को भी देख सकते थे। die letzten Worte gesprochen, और उस मंदिर में gesagt, was और उसने unserer Zeit और उसने मंदिर को देखकर कहा das, was damals geschehen ist, कि हमारे समय में क्या हो रहा है am Ende और उस समय में क्या हुआ der Zeit geschehen. और आजकल क्या चल रहा है इस समय में, Über जबकि अंत का समय आ गया। प्रभु ने कहा, Katastrophen. Alles ist anders प्रभु ने कहा था बहुत मुसीबतें आएंगी, in vergangenen Monaten. बुरी बुरी मुसीबतें आएंगी, आफतें आएंगी, Es wird mehr so sein, wie es einmal war. Doch mit और Gottes Hilfe और कुछ भी ऐसा ना बचेगा जैसा कि पहले था। नॉर्मल नहीं रहेगा, सामान्य नहीं रहेगा, wirklich so nahe, कि प्रभु का आगमन जो है ich sage es वो इतना नजदीक है। empfinde, dass मैं man ये nicht जानता हूँ, mehr कह सकता हूँ lange Predigten halten muss, sondern nur noch zusammenfassen. कि अब कोई लंबे लंबे भाषाएं और लंबे लंबे सरमन देने की जरूरत नहीं है। Uns auch besonders अब तो सिर्फ ये कहते हैं mitgeteilt wurde, dass wir das alles कि हम persönlich erleben, ये बातें कहते हैं dass unsere Versammlungen कि हम इन बातों को अनुभव कर सकें sein कि हमारी जो सभाएं हैं, und auch die Bemerkung क्योंकि gehört hierher. और Wenn ये es so बात kleine Hauskreise और ये बात sind, dann kann man sich schon versammeln. अगर कोई छोटे छोटे घर की मंडलियां हैं जहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जहां पर एक बड़ी बिल्डिंग हो ऐसी जहां पर 565 सीटें हैं और बालकनी है, 125 और है, तब ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम सरकार के नियमों के अनुसार कर पाए, और पर मुझे आज हम नहीं कर पा रहे, पर मुझे ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इन कुर्सियों पर, इन सीटों पर हम आकर दोबारा बैठ सकते हैं और फिर दोबारा मिलकर आ सकते हैं, जैसा बताया गया। न केवल सुनने के लिए बल्कि उनको अपने जीवनों में अनुभव करने के लिए, क्योंकि ये कलीसिया जो सच्ची कलीसिया है, इसका इस धरती पर रहने का जो समय है, ये जो समय है ये वैसा हो जाएगा इस कलीसिया का जैसा कि आरंभ की कलीसिया का था। और जिसने भी भाई ब्रनम के सरमन को सुना हो, उसमें वो कहते थे कि वो जो ऊपरा जो सिरे का पत्थर है, जो कैपस्टोन है, वो और अनुग्रह के द्वारा किस प्रकार से प्रभु अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, और ये वो कोने का पत्थर है, ये वो कोने का पत्थर है जिस पे नींव रखी गई, और यही वो पत्थर है जिसके द्वारा उस बिल्डिंग को कंप्लीट करके, यानी कि कैपस्टोन, यानी कि सिरे का जो पत्थर जो सिरे पे रखा जाता है वो ऊपर रखा जाता, इसी पत्थर से शुरुआत हुई, इसी से अंत है। और हम देखेंगे वचन में पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19 से लेके 2:19 से wenn nicht auch ihr es seid vor dem Angesicht unseres Herrn Jesus. Und jetzt kommt das ganz Besondere. Wenn nicht auch ihr es seid
Hier steht geschrieben, पहला थिस्सलुनीकियों 2:19। seine Wiederkunft. Wir haben es im Einleitungswort gehört. भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। Von der Krone des Ruhmes, और अगर हम आज पढ़ते हैं, den die Gläubigen वो जो मुकुट जो है, बड़ाई का, आनंद का जो मुकुट है, aufgenommen haben, dazu dienten, जिसने के उस समय में उस आत्मिक वचन को सुना, gebracht wurde, weil sie von Herzen क्योंकि इसकी जो महिमा है वो केवल परमेश्वर को मिलती है, केवल परमेश्वर के लिए है, क्योंकि उन्होंने अपने हृदयों से उसको जाना और माना और विश्वास किया। वो जो आनंद है, वो जो पौलुस का जो आनंद था, क्यों उसने जो प्रचार किया, gebracht hat, उसका जो प्रचार था वो बेकार में नहीं गया, पर उसने वो फल लाया। Krone auf, और so hat Paulus die जिस Gläubigen, प्रकार से एक मुकुट होता है, die den Sieg उसी Gottes प्रकार से erlebt haben, पौलुस भी जो है उसने उन विश्वासियों की तरफ देखा जो उन्होंने विजय प्राप्त करी और वचन के ऊपर चलने के द्वारा das geglaubt haben, उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। Gottes और उन्होंने अपने मनों से इस चीज को जाना और माना, और उन्होंने ये बताया। gebracht. ये जो मैसेज है, संदेश है, Krönung, इस मैसेज के द्वारा, इस समय के द्वारा, इस संदेश के द्वारा जो है, अब मुकुट धारण करने का समय आ रहा है। ये इनाम पाने का, यानी कि मुकुट मिलने का समय आ रहा है। Krone des Lebens मेरे लिए oder die Krone मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर आपने उस जीवन का मुकुट इस संदेश के द्वारा, जो विजय का मुकुट है, उसको अगर आपने पा लिया, अगर पा लें। और अगर हम प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय को पढ़ते हैं, जब के मेमने ने सील किताब को लिया, Kronen तो 24 प्राचीन जो थे, abgelegt und sich niedergeworfen उन्होंने अपने मुकुट जो थे वो उतार के रख दिए। gegeben. Auch wir, wenn wir auch gekrönt उन्होंने अपने मुकुट जो थे उतार के रख दिए प्रभु के सामने कि अब प्रभु हमें महिमा दे। und in उसके उन्होंने अपने मुकुट जो उनको दिए गए थे विजय के, उन्होंने वो मुकुट उतार दिए, वो नम्र हो गए और उन्होंने प्रभु के आगे उसके चरणों में वो मुकुट रख दिए, क्योंकि केवल महिमा जो है सिर्फ एक प्रभु ही उस महिमा के योग्य है। getan hat, was der Herr ihm geboten hat, जब एक सेवक ने सब कुछ कर दिया जो प्रभु ने कहा, ein unnütziger Knecht. तब उसको सिर्फ ये कहना चाहिए कि मैं तो एक बेकार का निकम्मा मनुष्य हूँ, हम मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं पाई जाती Und das और मेरे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं पाई जाती। ist, was der Welt nichts gilt, और प्रभु यही चाहता था alle Ehre und allen Lobpreis zu bekommen. Und wir danken और dem Herrn सिर्फ auch dafür, सारी की सारी आदर और महिमा जो है वो केवल परमेश्वर को मिले। wir sind nicht mit dem Boten Gottes verbunden, sondern mit Gott, der ihn और भाई और बहनों, इस बात को सोच लें कि हम उस नबी या उस संदेश वाहक या उस मैसेंजर से नहीं जुड़े हुए, हम तो उस परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, जिसने उस नबी को भेजा, जिसने उस संदेश वाहक को भेजा। sondern dem Herrn allein. Auch das और soll hier vielleicht केवल उस प्रभु के लिए gesagt werden, यहाँ पर यह कहा जाए, एक बार फिर कहा जाए कि हम Schmerz, denn wir glauben, हमारे लिए एक बड़े दुख की बात होती है die Zeit कि हम देख पा रहे हैं so kurz एक ऐसा समय आ गया है vor der कि इतना कम समय रह गया, Herrn प्रभु के आने के समय में के लिए कितना कम समय रह गया कि जो विश्वासी हैं eines कि वो एक मन हो जाएं, एक आत्मा में जुड़ जाएं, wie es am एक मन में जुड़ जाएं,
जैसा कि वो प्रारंभ में था, शुरुआत में था, उसी प्रकार से आज भी एक मन में, एक आत्मा में जुड़ जाएं विश्वासी लोग। अगर हम इसके बारे में सोचें, कितने सारे ग्रुप आज बन गए हैं, कितने सारे टुकड़े बन गए हैं जो कहेंगे हम तो संदेश को मानते हैं, हम मैसेज को मानते हैं, और वो सब वो कर रहे हैं जो अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी के चलाए चल रहे हैं, अपनी अपनी शिक्षा के चलाए चल रहे हैं। ये समय खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि सारे संसार में कि ब्रहनम के जो मानने वाले लोग हैं, इनको अब चाहिए कि, और वो कह रहे हैं, हर ग्रुप ये कह रहा है कि प्रभु मेरे लिए आ रहा है, प्रभु मेरे लिए आ रहा है, प्रभु मेरे लिए आ रहा है, पर इनमें से कोई भी ऐसा वादा नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं। ये लोगों को वर्गला रहे हैं कि प्रभु मेरे लिए आ रहा, मेरे लिए आ रहा, मेरे लिए आ रहा, पर ये शिक्षाएं अगर अलग हैं तो क्या प्रभु सबके लिए अलग अलग आ रहा है? केवल जो चुने हुए लोग हैं वो भरमाए नहीं जाएंगे, बाकी सब भरमाए जाएंगे। वो इंसान के पीछे और मनुष्य के पीछे नहीं भागेंगे, वो केवल परमेश्वर के पीछे, खुदा के पीछे, प्रभु के पीछे भागेंगे। वो सिर्फ हमारे प्रभु के पीछे, उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, और उसके अनुग्रह के द्वारा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और अगले अध्याय में, पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय में, पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय, Gott und Vater tadellos in Heiligkeit seien, 13वीं आयत में देखिए, 13वीं आयत, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें। अब देखिए यहाँ पर प्रेरित क्या कह रहा है, रसूल क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, मेरा और आपका मन ऐसा स्थिर हो जाना चाहिए प्रभु में, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें। हम अपने पिता और परमेश्वर के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें, बेदाग ठहरें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के समय पर प्रभु का धन्यवाद हो। भाइयों और बहनों, ये अल्फाज हमारे दिलों को छू जाते हैं। इनके लिए दूसरों के दिल में इसके लिए कोई मतलब नहीं है, उनके लिए अपनी अलग अलग शिक्षाएं हैं, पर प्रभु का जो मन है, और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम एक बार फिर से इस बारे में फिर से कहते हैं कि हम कहते हैं कि हम एक बारी फिर से इस बात को कहते हैं। ये जो संदेश यहाँ लिखा भाइयों और बहनों, ये समझिए कि ये आपको कहा जा रहा है व्यक्तिगत रूप से, और सारे संसार को कहा जा रहा है कि हम पवित्रता में निर्दोष ठहरें, परमेश्वर अपने पिता के सामने निर्दोष ठहरें पवित्रता में। हालेलुया। और पवित्रता में और अपने प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में हम जानते हैं कि प्रभु के आने के समय सब लोग जो हमसे पहले गए हैं,
so steht's ja वो पहले im उनको लेकर आएगा। dem पहला 4. थिस्सलुनियों Und das wollen wir चौथा अध्याय lesen. 1. हम पढ़ते हैं। Thessalonicher, 4. पहला थिस्सलुनियों 4 अध्याय, 15, पहला थिस्सलुनियों 4, 16. 15 और 16 Sagen wir euch aufgrund eines कि हम Wortes des Herrn. Amen. Nicht meine Meinung, nicht die Meinung des ये मेरा विचार नहीं है, sondern पौलुस का भी नहीं कहना, sagen wir euch क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वो पहले उठेंगे। Brüder und Schwestern, देखिए वो क्या कह रहा है, übrig bleiben हम में से कौन bis zur हम में से कौन ऐसे हैं जो कि प्रभु के आने के दिन तक बचे रहेंगे। Gläubige geben. Und ich sage es यहाँ noch 2 टाइप, einmal. Ich glaube, और देखिए, dass die और मैं जानता हूँ des Herrn कि प्रभु का जो आना है und dass die बहुत Zeichen नजदीक है। der Zeit und das, was और jetzt समयों के auf अनुसार Erden geschieht, अब जो हो रहा dazu और beitragen sollte, dass wir unsere कि Häupter हम erheben, wie unser Herr gesagt हमको hat, ये जो समय दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्रभु ने कहा, जब इन सारी चीजों को होता हुए देखो तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि अब तुम्हारे उद्धार का काम पूरा होने पर है। eure तुम्हारा उद्धार Nacht. अब बिल्कुल नजदीक आ गया। Alles. Und wir heben हम देखते हैं unsere Häupter और देखते हैं im Glauben, और हम अपने दिलों को, अपने मनों को wenn wir सिर wissen, विश्वास के द्वारा ऊपर उठाते हैं Leibes और ताकते हैं Erlösung nach. कि हमारी देहों का, हमारे बॉडीज का उद्धार नजदीक है। और देखिए, Nicht eine Lehre, ये नहीं कि कोई नबी, ये नहीं कि कोई टीचिंग, ये नहीं कि कोई आत्मिक बात हम कर रहे हैं। वहां लिखा है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, यानी कि पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से die Stimme प्रभु उतरेगा और ललकार के साथ और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। ertönt vom Himmel herabkommen und die Toten in और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। Erst जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। dann werden उसके wir बाद verwandelt हम und gemeinsam उसके बाद हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। für das प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो und heilige Wort, इस समय के लिए, auf was die इस समय के लिए, des Herrन इससे alles और प्रभु के आने के बारे में क्या लिखा है, जो कुछ लिखा है, geschrieben worden, ये सब कुछ जो उसके आने के बारे में जरूरी है वो सब कुछ लिख दिया है। an sein और कौन इस बात से महरूम रह जाएगा, mit Wahrhaftigkeit finden und ihn auch geben. और जो उसके वचन में बना रहेगा वही इस सच्चाई को प्राप्त कर पाएगा, इस राह को प्राप्त कर पाएगा। और पौलुस ने कहा, Als das so पौलुस ने यह कहा 15वीं आयत में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार ये कहते हैं, यानी कि प्रभु यूं फरमाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे thus saith the Lord, schallen und der Ruf यानी कि प्रभु की आवाज है, प्रभु का कहना है, किसी इंसान का कहना नहीं है। und sie werden और सारी बातें समझा रहा है, ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही, ये सारी बातों के बारे में पौलुस यहाँ लिख रहा है। Brüder und मुझे बताएं, hat es भाई और noch बहनों, deutlicher geschrieben बताएं मुझे, werden können? Hat es noch क्या इससे भी ज्यादा सफाई से ये बात लिखी जा सकती है? wie क्या इससे भी ज्यादा सफाई से बताई जा सकती है geschehen wird, was कि प्रभु का आना किस प्रकार से होगा? Brüder und Schwestern,
क्या होगा? Dank sei क्या इससे ज्यादा सफाई से कोई बात कही जा सकती है? इससे ज्यादा क्लियर और क्या करना है einziges Mal कि हम eine Aussage एक बार भी angenommen haben, sondern हमने कोई भी अनुवाद स्वीकार नहीं किया। heiligen Worte हम in तो all den प्रभु के Jahren उस über उस ein halbes Jahrhundert प्रतिज्ञा किए हुए उस अद्भुत वचन पर, अलौकिक वचन पर हम अपने मन को टिकाए हुए हैं, ein einziges Mal जो कि हमको प्रचार किया गया और बताया गया उस अलौकिक सच्चाई के द्वारा। उसमें से एक शब्द भी इधर से उधर नहीं करना है, और यही वो सच्चाई का संदेश है, जिस प्रकार से प्रभु का वचन सच्चा है। im 5. और पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, Thessalonicher 5. पहला थिस्सलुनीकियों 5 Vers 23. Er selbst, और इसकी 23 आयत। Vers 23. Er selbst aber, der Gott शांति का परमेश्वर heilig आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, euer Geist और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे तौर पर निर्दोष सुरक्षित रहें। ward हमारे प्रभु के आने के दिन तक हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारी देह सुरक्षित रहे। bei seiner तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हमारा प्रभु आने वाला है। प्रभु हमारे को पवित्र करे, in dein हमें पवित्र करे अपने वचन के द्वारा, और उसका जो वचन है जिसके द्वारा वो हमें पवित्र करता है, ये वचन है, और वो वचन ही सत्य है, और इस सत्य के द्वारा ही वो हमें पवित्र करता है और सिद्ध करता है। so gewiss जिस प्रकार wir als Erlöser, और हम उसके खून खरीदे हुए लोग हैं, als Wiedergeborene, als wahrhaftige जो कि Gotteskinder im Wort नया जन्म पाए हुए geheilt, उसकी संतान है। ohne यही वो सत्य की संतान है, niemand den Herrn क्योंकि बगैर पवित्रता के कारण कोई भी परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। auf annehmen, और हमने इस चीज को ohne देखा, eigene Ansprüche, हमने इस चीज को देखा। हमारे अपने कार्य, हमारे अपने जो कार्य हैं उसके द्वारा नहीं। geliebt, हमने जो प्रार्थना करी आजकल, mich selbst मैंने कहा प्रभु nicht heiligen. Heilige मैं अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता, heilige प्रभु तू मुझे पवित्र कर, और अपनी उपस्थिति के द्वारा मुझे पवित्र कर। अपने वचन के द्वारा, अपने वचन की उपस्थिति के कारण तू मुझे पवित्र कर। मैं अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। हमारी ये जिज्ञासा है, हमारी ये आशा है, nicht nur और यही हमारे जीवनों का संपूर्ण होना है, सिद्ध होना है। alle Korrekturen annehmen, जितना सुधार है Brüder und Schwestern, वो उसको हमें मानना है प्रभु के वचन से। zu sagen. Aber so scharf हम यहाँ ना wie कहें, Bruder पर ये कितना है, in ये seiner इतना तेज है। letzten Predigt, जैसे भाई ब्रैनम ने कहा अपने आखिरी सरमन्स में बोला, Frauen जैसा उन्होंने कहा, ins Blickfeld जो बहनें हैं, Brüder und Schwestern, और उन्होंने उनको रखा, alle, jedes Wort, das और उन्होंने कहा gerichtet ist auf und जो हमें कहा गया है, wie wir हमें उसे दिल से ग्रहण करना है, रिसीव करना है। और जैसा उसने कहा jeder Bruder, कि jeder Mann, कि हर भाई die और एक बहन, die an ihn ये बहन और हर भाई इस बात को पढ़े जिनको शादी करनी है, जो विवाह करने जा रहे हैं stellen, या विवाहित हैं, इस बात को पढ़े gerichtet sind, जो आपको कहे गए हैं, welche Harmonie जिस sein kann जिससे के und wie mit आपके उस रिश्ते में एक आत्मिक सुलह हो, एक आत्मिक अंडरस्टैंडिंग हो, हार्मनी हो, समानता हो। Bruder Brennim scheint मैं manchmal मैं बहुत इसके बारे में सोचता wenn हूँ। er über dieses Thema भाई ब्रैनम कई बारी गुस्सा हो जाते थे, somit नाराज हो जाते थे, सीरियस हो जाते थे, helfen und
वो कह रहे थे कि वो इतना सख्त हो जाते थे, गंभीर हो जाते थे कि सारा जो प्रॉब्लम थी, सारा गुनाह, सारी मुश्किलें जो थी ईव की वजह से आई। और प्रभु कह रहा है, देखिए हमारे पास एक और संदेश है, प्रभु का वचन है। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय और पहली आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:1, हे भाइयों हम अब अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन और पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझ कर के प्रभु का दिन आ पहुंचा, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, तुम ना घबराओ। ये वो बातें बता रहा है प्रभु के आने के समय की। बोल रहा है, मैं तुमसे विनती करता हूँ प्रभु के आने के बारे में और अपने इकट्ठे होने के विषय में। हमारे इकट्ठे होने के विषय में मैं तुमसे विनती करता हूँ। कहता है दूसरी आयत, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से है, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। किसी रीति से किसी के धोखे में मत आ जाना, तुम्हारा मन ना घबराए, ना तो किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, मानो हमारी ओर से हो, ऐसा मत समझ लेना। ऐसा लगे कि प्रभु का दिन आ चुका, ऐसा ना समझ लेना। इस गलत शिक्षा में मत फंस जाना। पौलुस उनको चौकन्ना कर रहा है। प्रभु ने हमें बता दिया कि यहाँ इस कलाम में, वचन में क्या लिखा है, उसने हमें बता दिया और उसने अपने वचन से बता दिया। हमें किसी बाहर के प्रकाशन की जरूरत नहीं, किसी स्पेशल रेवलेशन की जरूरत नहीं। हमारे पास तो दे दिया उसने अपने वचन में, सारा का सारा प्रकाशन उसने अपने वचन में हमको दे दिया। और मेरा मन बड़ा व्याकुल हो गया कि हम हिल ना जाएं और हमारा मन ना व्याकुल हो जाए। इसलिए हम कभी व्याकुल ना हो जाएं। और पौलुस कह रहा है, वो प्रभु का जन है और सभी स्थानों में हमें बहुत, हर चीज के अंदर वो आत्मा के द्वारा चलता था कि हमको प्रभु ने, कोई कहे कि ऑलरेडी प्रभु का दिन तो आ चुका, हमें पता ही नहीं चला। नहीं, ये गलत शिक्षा है, इसको ना माने, इसको भूल जाएं, ये गलत शिक्षा है। पौलुस यहाँ देखिए कितना चौकन्ना कर रहा है, कितनी चेतावनी दे रहा है। ऐसा मत समझ लेना, ना वचन के द्वारा और ना किसी पत्री के द्वारा मत समझ लेना कि प्रभु का दिन आ गया है। नहीं। और ये जो मैंने बताया प्रभु के आने के बारे में और हमारे मिलने के बारे में जो मैंने बताया, इसके बारे में बड़े चौकन्ने रहना, किसी झूठी शिक्षा में मत आ जाना। जैसा कि लिखा है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से वो लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर प्रभु यीशु किस तरीके से आएगा, क्या क्या होगा और किन के लिए आएगा, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा लिखा है। किसी दूसरी शिक्षा में मत भरमाए जाना। और प्रभु का जो जीवित कलीसिया है, मंडली है, जो आखिरी संदेश है, वो आगे चला गया है। और जो आखिरी पुकार है वो भी आ चुकी है। और सारे लोग और सब लोग जो हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं
कि प्रभु auf Üben अपना संदेश, अपना वर्क, अपना काम, जो अलौकिक काम हमारे जीवनों में कर देवे। zu Anfang gesagt, die Zeit और जैसा हमने कहा शुरू में nicht mehr कि lange Predigten hören werden, sondern और हमारे पास लंबे लंबे संदेश सुनने का समय नहीं है हमारा। अब तो हमको अपने घुटनों को प्रभु के आगे टिका देना है और उससे कहना है और अनुभव करना है इस बात का, इस सामर्थ्य का कि हमारे ऊपर पुनरुत्थान की वो सामर्थ्य प्रकट की जाए और प्रभु के संदेश को हम जान सकें। और जब हमने कहा, जैसा पहले कहा जकरिया 4 में, कि वो जो सिरे का जो पत्थर है, जो पहला और आखिरी यानी के कोने का पत्थर और सिरे का पत्थर, ये दोनों अल्फा और ओमेगा को दर्शाते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। ये कितना बड़ा अनुग्रह है। और इस कंफ्यूजन में जिसमें हम आज पाए जाते हैं सारे संसार में, और हमको अनुग्रह मिला है कि हम उसके उस अद्भुत और अलौकिक और प्रकाशित और प्रचार किए गए वचन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं और उस पर अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवनों में उसका अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवनों में विश्वास के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। इसका हम अनुभव करें, इस पूरे काम का अपने जीवनों में सिद्ध होने का अनुभव करें। और प्रभु के नाम को सारी महिमा। प्रभु आप सबको आशीष दे। स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में और सारे यूरोप में और पूर्व और पश्चिम में सबको वो आशीष दे और सबको सारी भाषाओं में, सारे देशों में और सारे नगरों में प्रभु अपना काम पूरा करता है, अपने काम को सिद्ध करता है। और प्रभु हमारे समय में आए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मारानाथा। और प्रभु का नाम आशीषित हो, उसके नाम की बड़ाई और महिमा हो। और प्रभु हम सब खड़े हो जाएंगे और भाई स्मिथ आकर के हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। और Gnadenreicher Herr, हमारे स्वर्गीय पिता, Blick zu dir, sagen wir dir Dank, तेरे तरफ देखते हुए हम तेरे को धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं इस समय के लिए auch Herr, कि तूने ऐसा होने दिया। auf den Leuchter gestellt. Du तूने अपना वचन जो है उस दीपदान पर रख दिया gibst, schenkst Gnade, और तूने हमें अनुग्रह दिया zu bleiben. कि हमें एकदम सीधा सादा नम्र रहना है और विश्वास करना है, Den Herr im Himmel, du क्योंकि सारा का सारा der du zu क्योंकि सारी महिमा तुझे देनी है। और तूने हमसे बातचीत करी geredet hast, deinem Volk auch in unser letztes जिस प्रकार से तूने हमसे हमेशा बातचीत करी इस समय में, oh Herr, wir और sehen जिसमें अब हम आखिरी समय में चल रहे हैं प्रभु। vor unseren Augen in और Erfüllung प्रभु alles das, was du और प्रभु ये हमारे जीवनों में सामने आ रहा है। und और uns प्रभु aufmerksam gemacht hast und auf तूने हमें ऐसा बनाया कि हम उसकी तरफ अपने ध्यान केंद्रित कर सकें, und dir den Dank हमारे मनों को हम ऊंचा उठा सकें इन चीजों को देख कर gebracht और hast हमें अनुग्रह दे für die ganze कि तूने हमें जो उद्धार का काम दे दिया प्रभु। für die, die और प्रभु haben und dich जो तेरे वचन को लेते हैं, Erlösung nahe ist. Segne du uns, इस segne du और dein ये Volk, उद्धार का काम इतना नजदीक है, इसका सिद्ध होना इतना नजदीक है, जिस प्रकार से सारी संसार में प्रार्थना की गई प्रभु। और प्रभु bitte sei mit uns, और प्रभु Herr, हमारे साथ denn हो wir stehen wie jene damals, प्रभु। als du sie हम mit ihnen nach और प्रभु Emmaus gingst, Herr, bleibe bei uns, denn es जिस wird प्रकार से Herr,
और प्रभु एमाउस की राह वाली कहानी हमारे साथ हो प्रभु। और प्रभु समय बीतता जा रहा है, और प्रभु तेरा वचन हम पर प्रकट हो रहा है, तू हम पर प्रकट हो रहा है। और प्रभु तेरे वचन में उन्नति होती जाए, तेरे वचन में बढ़ोतरी होती जाए प्रभु, और तेरे नाम को ही हम बढ़ाई और महिमा देते हैं। हमें अपने वचन में रख, और जिसको तूने ये आज्ञा दी, बुलाहट दी, उसको भी संभाल के रख, उसकी भी सुरक्षा कर प्रभु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। Die ziehen ein zum
ist nah.